A very good morning to students. Students, previously, students, all of you have went through the questions related to how to determine the components of forces on inclined plane, है ना? तो inclined plane पे जो forces आ रहे हैं उनके components निकालना है तो आपको कैसे निकालना है आपको आज चुका है जैसे कि previously हमने डिस्कस किया है कि there were two forces F and P that were those were acting over an object which is resting on an inclined plane at certain angle with respect to horizontal plane. So you were dealing with this inclined x and inclined y axis. According to this axis, you were determining the components fx and fy, px and py. The px were parallel to this inclined x, fx were parallel to this inclined x. Okay, so ये your Fy was parallel to inclined y, your Py was parallel to inclined y, your Fx was parallel to inclined x, your Px was parallel to inclined x. तो according to this आपने Fx, Fy, Px, Py निकाला था. अब हम इसके ऊपर आज मैं पुट अप करने वाला हूँ असाइनमेंट जो आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है बाय विद इन 2 days टिल वेडनेसडे. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम एक न्यूमेरिकल करेंगे over how to determine the resultant of both forces. Okay, so there is this has already been discussed with you all students. The resultant कैसे निकालते हैं? So there is a question written over here that determine the resultant of both forces acting on a body as shown in figure. So you have a figure that is shown to you. इन चारों फोर्सेस का आपको एक रिजल्टेंट निकालना है जो आपको आता है कैसे निकालना है. So you can see that there is a force that is acting in the first quadrant 200 Newton, the second force in second quadrant that is 390, the third force in the third quadrant that is 300 Newton and the fourth force in fourth quadrant that is 224 Newton. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे. मैं आपको एक बार इसको सिंपली सॉल्व करके शो कर देता हूँ. So what you are going to do, simply you are going to draw a graph. As you can see, all the forces are uh, traveling from the origin. That means all the forces are concurrent forces. So as all the forces are concurrent, then resultant will also be concurrent. That means it will also pass from the same point. Okay. So let's start one by one with considering each forces. So there is a force with 200 Newton value and its angle is 60 degree with the horizontal. All of you know this is positive x, this is positive y, this is negative x, and this is negative y. First quadrant positive positive, second quadrant negative positive, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहला फोर्स पकड़ रहे हो. फोर्स क्योंकि इंक्लाइंड है और आप मैकेनिक्स में इंक्लाइंड फोर्सेस से डील नहीं करते, तो आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट करोगे इनटू टू कंपोनेंट्स. एक जाएगा एक्स में, एक जाएगा वाई में. तो फोर्स जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स और वाई एक्सिस बन जाएंगे इसके कंपोनेंट. तो बस मैं वही करने वाला हूँ. इसका एक्स एक्सिस बन गया आपका एक्स कंपोनेंट और इसका वाई एक्सिस बन गया आपका वाई कंपोनेंट. ठीक है, इसकी वैल्यूज डिपेंड करती है. एक की वैल्यू रहेगी एफ कॉस थीटा, एक की वैल्यू रहेगी एफ साइन थीटा. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन थीटा. सिंस द थीटा इज गिवन टू यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप एक्स कंपोनेंट को दोगे कॉस, बचे वाले को साइन, सामने में इसके एंगल और पहले इसके पेरेंट का वैल्यू दैट इज 200. सिंस मेरे पास आंसर अवेलेबल है मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप कर देता हूँ. ये हो गया 100 न्यूटन, ये हो गया 173.20 न्यूटन. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड फोर्स बना हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में बना देता हूँ उसको. द वैल्यू इज 390 न्यूटन. इसका इंक्लिनेशन नहीं दिया डायरेक्टली आपको, तो इसका क्या गिवन है, आपका स्लोप गिवन है. ठीक है, स्लोप इज 5:12. तो आप कुछ नहीं करोगे, इसका एंगल निकाल लोगे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. स्टूडेंट्स, आप एंगल्स जो है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल निकालोगे. ठीक है, आप क्या करोगे, इसको सेपरेटली बना लोगे. यहाँ पर 5, 12,
थीटा निकालना है, tan से निकल जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा निकाल लोगे। आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट। उसी तरीके से आप इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट निकाल लोगे, करेक्ट है। एंगल क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है तो एक्स कंपोनेंट को कॉस, बचे वाले को साइन। आई होप इट इज क्लियर। सामने में क्या रहेगा, पेरेंट नेम, और यहाँ पे रहेगा एंगल। एंगल क्योंकि मेरे पास पहले से निकला हुआ है, मैं पुट अप कर देता हूँ डायरेक्टली। 12/5 है 67.38, 12/5 tan इनवर्स का 67.38 डिग्री। मैं इसको सिंपली पीछे शिफ्ट कर दे रहा हूँ। इंक्लाइंड का हॉरिजॉन्टल से एंगल, इंक्लाइंड का हॉरिजॉन्टल से एंगल दैट इज 67.38 डिग्री। यहाँ पुट अप कर दे रहा हूँ 67.38, यहाँ 67.38। क्या वैल्यू है यहाँ से एडॉप्ट कर लेते हैं। दिस वैल्यू इज 150, दिस वैल्यू इज 360। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। थर्ड क्वाड्रेंट में एक फोर्स है, वैल्यू है उसकी 300 न्यूटन, उसका एंगल गिवन है 30 डिग्री। क्योंकि ये फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस बन जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस बन गया इसका एक्स कंपोनेंट, और वाई एक्सिस बन गया इसका वाई कंपोनेंट। एक की वैल्यू एफ कॉस थीटा, एक की वैल्यू एफ साइन थीटा, विच डिपेंड्स अपॉन थीटा, थीटा इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एक्स कंपोनेंट को मिलेगा कॉस, बचे वाले को साइन, सामने में एंगल, और पीछे में पेरेंट फोर्स दैट इज 300। वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ 260 एंड 150। आगे आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एक एंगल है, सॉरी एक फोर्स है, दैट फोर्स इज 224 न्यूटन। द इंक्लिनेशन ऑफ विच इज नॉट गिवन टू यू, इसका इंक्लिनेशन गिवन नहीं है बट स्लोप गिवन है, दैट इज 2:1। आपको आता है स्लोप से एंगल बनाना। एंगल आप ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे, इट इज क्लियर। बस वही करोगे सेपरेटली, इसको बना लोगे। थीटा ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अपोजिट इज 1, एडजेसेंट इज 2, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा निकाल लोगे, tan इनवर्स ऑफ 1/2, वैल्यू इज 26.56 डिग्री। यहाँ पुट अप कर दोगे। एंगल इज इंक्लाइंड से हॉरिजॉन्टल का, तो इंक्लाइंड से हॉरिजॉन्टल का एंगल अब आपको मिल गया है, दैट इज 26.56। कंपोनेंट निकाल लोगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस बन गया एक्स कंपोनेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का वाई एक्सिस बन गया वाई कंपोनेंट। एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वाले को कॉस 26.56, बचे वाले को साइन 26.56। सामने में पेरेंट फोर्स दैट इज 224 वैल्यू क्योंकि अवेलेबल है तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली पुट अप कर देते हैं, दैट इज 200.36 न्यूटन एंड 100.16 न्यूटन। देखिए पूरे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हो गए। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सेकंड क्वाड्रेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, थर्ड में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फोर्थ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हाँ, इंक्लाइंड फोर्स हमारे पूरे कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू horizontal and vertical forces. So let's start with our motive, that is to find resultant which is having some steps. Let's start with the first step, that is all the forces in x direction. पूरे फोर्सेस हम पकड़ेंगे जो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनको सम अप करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक फोर्स 100 न्यूटन कहाँ जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है, राइटवर्ड मतलब पॉजिटिव, ठीक है। और कोई फोर्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, एक फोर्स है जो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन लेफ्ट जा रहा है, इसलिए उसको लेके नेगेटिव, और उसकी वैल्यू है 150। थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, कोई फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, हाँ है, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो लेफ्ट के हिसाब से नेगेटिव, उसकी वैल्यू है 260। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक फोर्स है जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, राइट वर्ड है लेफ्ट वर्ड है, तो राइट वर्ड है, राइट वर्ड मतलब पॉजिटिव, वैल्यू 200.36। और कोई फोर्स बचा जो एक्स में है, नहीं, हो गए पूरे। सम अप करते हैं, वैल्यू देखते हैं, 100 माइनस 150 माइनस 260 प्लस 200.36,
वैल्यू आ गई है 109.64 न्यूटन। देखिए, ये रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट है। आपको पता है रिजल्टेंट, जैसे कि हर एक फोर्सेस के दो कंपोनेंट होते हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई, वैसे ही रिजल्टेंट के भी दो कंपोनेंट होते हैं, आप सबको पता है। रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई। तो ये रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट हो गया। अब निकालते हैं सेकंड कंपोनेंट, दैट इज ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, जिसमें ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे जाने वाला नेगेटिव। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या था, राइटवर्ड जाने वाला पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड जाने वाला नेगेटिव। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं, कोई फोर्स जा रहा है ऊपर। हाँ, एक जा रहा है ऊपर। ऊपर मतलब पॉजिटिव, वैल्यू है 173.2। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। कोई फोर्स है जो वाई डायरेक्शन में, हाँ है, कहाँ जा रहा है, ऊपर। ऊपर मतलब पॉजिटिव, वैल्यू है 360। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, कोई फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, हाँ है, कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे मतलब नेगेटिव, वैल्यू है 150। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, कोई फोर्स है वाई डायरेक्शन में, हाँ है, कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे मतलब नेगेटिव, वैल्यू है 100.16। उसका सम अप कर लेते हैं, कितना आ रहा है देख लेते हैं। 173.2 प्लस 360 माइनस 150 माइनस 100.16, कितना वैल्यू आ रहा है, 283.04। ये क्या आया, पॉजिटिव। ये क्या आया था आपका, नेगेटिव। मैंने लिखा नहीं, ये नेगेटिव वैल्यू आई थी। ओके, तो आपके रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट हो गए हैं, समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई। एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। दोनों को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये नेगेटिव जा रहा है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये ऊपर पॉजिटिव मतलब ऊपर, वैल्यू इज 283.04। तो आपका रिजल्टेंट कहाँ पे ऐड करेगा, इट विल बी इन दिस सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, इट विल बी इन दिस सेकेंड क्वाड्रेंट। तो बस आपको पता चल चुका है आपका रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, अंडर रूट ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन का भी स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। माइनस 109.64 का स्क्वायर, और एफ ऑफ वाई बोलता है 283.04 का स्क्वायर। आंसर निकाल लेते हैं, एक काम क्या आता है देख लेते हैं। अंडर रूट ब्रैकेट 109.64 का स्क्वायर प्लस 283.04 का स्क्वायर। वैल्यू आ रही है 303.53 न्यूटन। तो आपका रिजल्टेंट निकल चुका है, दैट इज 303.53 न्यूटन। अब हमको उसका पोजीशन निकालना है, दैट इज थीटा। थीटा का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन अपॉन ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो इसमें हम सिंपली वैल्यूज पुट अप करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि हमारा रिजल्टेंट कितने से इंक्लाइंड है। क्योंकि मॉड डाला है तो नेगेटिव साइन नहीं डालेंगे। ठीक है, ये समेशन एफ ऑफ वाई पुट अप किया, ये समेशन एफ ऑफ एक्स पुट अप किया। वैल्यू निकालता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 283.04 डिवाइड बाय 109.64। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 68.82 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। आई होप ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो अब हम रिजल्टेंट को बना सकते हैं। ये बना लिया मैंने ग्राफ। मेरा एक्स एक्स समेशन एफ ऑफ एक्स, जो कि मेरा रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट है, कितना आया है, -109.64। तो माइनस मतलब नेगेटिव, ये लेफ्ट वर्ड। दिस इज माय समेशन ऑफ एफ एक्स। इसकी वैल्यू आई है 109.64। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैंने -109 नहीं लिखा, वजह क्योंकि मैंने माइनस साइन इस एरो से ऑलरेडी शो कर दिया हूँ। तो जब एरो ने बता दिया माइनस है, तो आप नंबर्स में माइनस नहीं लिखोगे। कहने का मतलब, आप जब
फिगर ड्रॉ करोगे तो फिगर में माइनस प्लस नहीं लिखते हो, हर वैल्यूज को प्लस शो करते हो और एरो बताता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो -109.64 था, तो मैंने उसको कहाँ प्लॉट किया, लेफ्ट वर्ड, करेक्ट है, और उसकी वैल्यू लिख दिया 109.64। अब आगे बढ़ते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, इसकी वैल्यू आई है 283.04, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। अब एफ ऑफ वाई कहाँ जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन आपकी वैल्यू कितनी है, 283.04, यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव मतलब ऊपर। तो ये बन गया आपका सेकंड कंपोनेंट, समीकरण एफ ऑफ वाई 283.04 न्यूटन। तो आपका रिजल्टेंट कहाँ ऐड कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये मैंने बना दिया मेरा रिजल्टेंट आर, जिसकी वैल्यू आई है 303.53 न्यूटन, जिसकी एंगल आया हुआ है 68.82 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ आपका न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको फोर फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना आ गया है स्प्लिट करके। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वही काम करेंगे, रिजल्टेंट वाला ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें एक फोर्स आपका अननोन रहेगा, आपको वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके, so that's it for today. Thank you very much.